Hello everyone. I hope everybody is doing fantastic and I'll just check whether the screen is visible to all of you or not. Just give me a moment for that. I hope the screen is crystal clear. Yes, it's working well. I need to double check. Okay, first of all, as you can see on the screen, the poem of today's session is Keeping Quiet. Now, this poem is an explanation of the world to be more quiet, to be more calm, to be more silent. It is a plea. Plea means it's a request to the mankind to be quiet for some time and to self introspect. सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्म मंथन, अपने गिरेबान में झांक करके देखना. What am I? Who am I? And what are my strengths, weaknesses, opportunities, threats? मैं क्या हूँ? So the theme of this poem is a request to mankind to know about himself, right? And it's a beautiful poem, and I hope I would be able to make you understand each and every letter, each and every word, and the connection of the lines in between the poem. All right, so can we begin? Is everybody motivated enough? Yes, come on. So, about the poet, as Pablo Neruda, 1904 to 1973, was the pen name and later legal name of the famous Chilean poet, diplomat, politician. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. He wrote in Greek ink, which was his personal symbol for desire and hope. His writings are simple, wherein lies their beauty. We always say that simple living and high thinking. So, Sadharan Jeevan, I think it is the track towards the success if we are living a simple life. Originally written in Spanish, the essence of the poem is based on introspection and retrospection. Introspection का मतलब होता है जानना, to know about yourself, to analyze what is right, what is wrong, to rationalize things. मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, एंड टू सी कि मैं पहले रेट्रोस्पेक्शन मतलब पहले मैं कहाँ गलत गया, व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माय पास्ट एंड आई वोंट बी रिपीटिंग दैट इन माय प्रेजेंट. यथार्थ में मैं उन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं. द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग का मतलब है कि ऐसा रूह ढूंढ रहे हैं जो हमें एक सुकून प्रदान करे. That some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. एक ऐसी रूह जिससे हमें सुकून मिले, शांति मिले, इस शोर से, इस कियोस वर्ल्ड से हम लोग दूर हटे एंड एक क्वाइट वर्ल्ड के अंदर जाएं, एंड वेयर वी एनालाइज, वेयर वी understand the importance of time, importance of people, the value of brotherhood. Right, so the poem is all about प्यार के बारे में है poem, और poem है importance of human beings के बारे में है poem. So there are two very important things in the poem. One is love, and the second is love amongst the human beings and the value of human beings, right? So the first stanza, let's just begin. Now we will count to 12. Now the moment I read the first line, we will का मतलब क्या है? हम सब. Will is future tense. हम सब क्या करेंगे? यहाँ पे पैब्लो नारोडा कह रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम सब क्या करेंगे? 12 तक गिनेंगे. क्यों? What is the importance of 12 in this particular line? The importance of 12 is the time.
घड़ी देखी है आपने कभी? 6, 12, 3, 9 ऐसे 4 बने होते हैं. So here 12 has been used for time. एक साल में 12 महीने होते हैं. So 12 is also been used for the calendar to showcase the value of time. समय की importance बताने के लिए. Alright? Now we will count to 12 and we will all keep still. सब जहाँ है वहीं रहेंगे. कोई movement नहीं, कोई rush नहीं. So we will all be still wherever we are without any movement. There will be no movement, and of course जब movement नहीं है तो वो moment नहीं होगा. ठीक है? For once on the face of earth, एक बारी धरती के चेहरे पर, let's not speak in any language. Why do you think the poet says that कि किसी भी भाषा का प्रयोग मत करिए? क्योंकि भाषा का प्रयोग करने से क्या होता है? बाइफिकेशन होता है, लोग बट जाते हैं. द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी, मुझे कैटेगराइज कर दिया जाता है. अरे यार ये तो पंजाबी, ओ यार किद्दां दियां गल्लां करदे पे हो तुसी. द मोमेंट आई स्पीक इन पंजाबी आई हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अ पंजाबी. द मोमेंट आई स्पीक इन बंगाली, आई एम कैटेगराइज्ड एज अ बंगाली. तो भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है. इसी वजह से लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बिकॉज वो हमें सेपरेट करेगा. पैब्लो नेरुडा कह रहे हैं यहाँ पर, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. नॉट मूव आवर आर्म सो मच मीन्स देयर शुड बी नो वायलेंस. कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा. सो देयर शुड बी नो वायलेंस फॉर वन. एक बारी के लिए जस्ट ट्राई. मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, इट इज अ प्ली टू मैनकाइंड की सिर्फ एक बारी शांत रहकर देखो. कीपिंग क्वाइट, साइलेंस का जो लुत्फ है, जो मजा है, जस्ट फील दैट एंड नॉट मूव आवर आर्म्स so much. I hope the first stanza is clear to you. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. किसी भी भाषा में हम नहीं बात करेंगे. Just a moment. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Rhyming scheme यहाँ पर कोई भी नहीं है. It is a free verse. Free verse का मतलब there are no last के words कहीं भी आप देखेंगे. They are not at all connecting with each other. It is just a free verse. It does not follow any pattern, any rhyming scheme. Okay? अगर question exam में आता है that what is the rhyming scheme of keeping quiet, you will write there is no specific rhyming scheme. It is a free verse, right? Now I'm just reading the explanation for you. A piece of introspection and retrospection. जानने, अपने आप को जानना, अपनी पुरानी गलतियों को जानना और उसके ऊपर काम करना, right? Hints at a state of equilibrium where without any movement or activity we get to introspect ourselves. शांत रहकर अपने आप को जानने की कोशिश करना. He wants us to count 12. 12 तक गिनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. क्यों? Which may represent the hours of a day or the months of a year. वॉच का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एंड यहाँ पे कैलेंडर का एग्जाम्पल दिया. सो दीज टू आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 12. ठीक है? ही वॉन्ट्स टू यूनाइट द पीपल अक्रॉस द नेशन टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. वो चाहते हैं कि सब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो
किस में बात करें? स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. साइलेंस मीन्स दे शुड नॉट utter any word. The moment they utter the word, click, we'll get to know कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनका कास्ट क्या है, सब ये सब जानने के बाद क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन होगा. So he wants to unite the people. Unite the people here is brotherhood across the nation to speak the language of silence instead of speaking in different languages. ठीक है? A message for unity. एकता, सब लोग साथ रहें. पीस, शांति बनी रहे. यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ब्रह्मांड में एक भाईचारा हो. ठीक है? Second stanza. I hope this stanza is very much clear. There are no doubts in this. And the picture over here, what is the picture all about? The picture is all about the importance of staying quiet, the importance of being in silence. कभी कभार जब हम शांत रहते हैं तो हमें चीज़ों का समझ में आता है कि हमने कहाँ गलतियाँ किए हैं या हमें डांट क्यों पड़ रही है मॉम डैड से. We think and then we understand कि हम कहाँ गलत थे. So it is very important to sit in silence for your own self. And the best way out is meditation. It will help you a lot in your life if you meditate and if you understand, right? It would be an exotic moment. Exotic यहाँ पर it refers to, it would be a strange moment. It would be a rare sight. क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा दिन शांति हो. यहाँ पर आगे वो बोलेंगे कि इंजन्स नहीं हो, डेथ्स नहीं हो, ट्रक पे कोई हॉन्क ना करे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो अगर ऐसा होता है, इट वुड बी समथिंग टोटली रेयर. और अगर ऐसा होता है तो समथिंग वेरी स्ट्रेंज. अच्छा, सब शांत है, वाओ, that's going to be an exotic moment. It's going to be a memorable moment if this happens. This here. It would be an exotic moment if without rush, कोई भी भाग नहीं रहा है. We all are running. I have, like, we are having absolutely no idea where we are running in our lives, but सब भाग रहे हैं. कहाँ भाग रहे हैं पता ही नहीं है. सुबह उठते हैं, जाते हैं काम पे, काम करके घर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर like everybody is running where they don't know. So without rush, without engines, सुबह सुबह गाड़ी लेकर जाते हैं, हॉन्क करे, अरे भाई मुझे रास्ता दो, पहले मुझे जाने दो, एम्बुलेंस की आवाज़. Like there is so much of noise pollution. Specifically, I think me being a Delhiite, बहुत ज़्यादा noise pollution है. So without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Strangeness, yeah, it refers to, because ये तो होना थोड़ा सा impossible है. तो अगर ऐसा होगा तो it will be something very strange, out of the box, right? Fishermen. Fishermen कौन होते हैं? मछुआरे, जो ठंडे कोल्ड सी में क्या फेंकते हैं? नेट फेंकते हैं. पैब्लो नेरुडा यहाँ पर कह रहा है, मैं एक बार ही चाहता हूँ कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. वो मछलियाँ ना पकड़े, वो शार्क्स ना पकड़े, वो दूसरी जो बड़ी वेल्स हैं वो ना पकड़े. इज दैट इवन पॉसिबल? नो. अगर वो मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो रिवर में बहुत सारी मछलियाँ हो जाएंगी. Or the whole cycle will be at a loss, or this there is a possibility कि पूरी cycle थोड़ी सी deviate हो जाए. So fishermen in the cold sea, मैं चाहता हूँ एक बारी के लिए वो fishes ना पकड़े, वो harm ना करे, whales को kill ना करे. And the man gathering salt, और जो इंसान है, जो एक आदमी है, जो आपको पता है जब हम salt collect करते हैं तो हमारे हाथों पे रेशाएं हो जाती है. लाइक इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी हर्टफुल. इफ यू एवर
अगर कभी भी आप सॉल्ट मेकिंग में देखेंगे तो हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है. So fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. बहुत ज़्यादा रेड कलर के हो जाते हैं हाथ, and it's very extremely painful to see your hands after the salt collection. Just give it a read once. Just a moment. Yeah, I will just read once again for you. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen जो मछुआरे हैं वो एक बारी के लिए मछलियों को हार्म ना करें. And the man gathering salt would not look at his hurt hands. वो अपने हाथों को ना देखे. No person would be harming any other living being either for food or to earn his livelihood. मैं चाहता हूँ कोई भी इंसान ना ही अपने खाने के लिए और ना ही अपनी जिंदगी को चलाने के लिए मछलियों को मारे या किसी भी एनिमल किंगडम में किसी भी एनिमल को मारे. All the people who work endlessly, जो रोजाना काम करते हैं, उनको कुछ समय मिले, get some time to look at their injuries, कि मुझे कितनी ज़्यादा दर्द होती है जब मैं सॉल्ट कलेक्ट करता हूँ, या मुझे कितनी ज़्यादा दर्द होती है जब मैं बोरियाँ उठा के लेकर आता हूँ नमक की, because it is painful. All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and the damage they have caused to their body. और जो भी पेन कॉज हुआ है, जो भी प्रॉब्लम कॉज हुआ है, वो एक बारी देखें कि कितना दर्द हुआ है. They should have time to analyze things what they are doing in their lives, right? He gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. वो चाहता है कि लोग एक बारी के लिए रुकें और पीछे मुड़कर देखें कि क्या उन्होंने खो दिया है और क्या उन्होंने अचीव किया है और अब आगे उनको लाइफ में कैसे बढ़ना है. बेसिकली यहाँ पर पोएट कह रहा है जिंदगी में ठहराव लाइए आप, क्योंकि जिंदगी में ठहराव लाने से जिंदगी और ज़्यादा आसान हो जाती है. That is what the poet is trying to make all the readers understand. Correct? This reminds us of a line from the poem Leisure by W.H. Davies. What is life if full of care? We have no time to stand and stare. जिंदगी क्या है अगर हमारे पास वक्त ही नहीं है देखने का कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे क्या करना है. Then what is life if I don't have time to stand, to sit, to stare? Correct? So please, it is a request from Pablo Neruda to look at your life with a positive approach, to look at your life whether you are losing, whether you are winning, to just be quiet for some time. Correct? Those who prepare green wars, जो लोग दंगे रायट्स प्रिपेयर करते हैं और उसमें क्या करते हैं, दे किल ईच अदर, बसें जला देते हैं, रोड्स पे पुतले जला देते हैं. जो लोग वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, गैस वॉर्स विद फायर, वो अगर जीत भी जाएं, अगर उनको विक्ट्री मिल भी जाए, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कौन रहेगा उनके पास? Even if they win, किसी को मार के अगर वो जीत भी जाते हैं वो विक्ट्री, तो उस विक्ट्री को सर्वाइव करने के लिए कौन उनके पास बचेगा जो सेलिब्रेट करेगा, ये हम जीत गए? वो खुशी कहाँ नसीब होगी? बिकॉज द पीपल हु हैव डाइड
have lost their families. I'll again repeat the statement because ये क्वेश्चन एग्जाम में 500% आता है. इस पोएम में से ये क्वेश्चन 500% एग्जाम में आता है. And the question has been asked that what do you mean by the statement victory with no survivors? So this statement indicates there is winning, but for that celebration there is no one alive. उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई जिंदा ही नहीं है. लोग मर चुके हैं. जीत तो मिल गई है बट उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए देयर आर नो पीपल हु आर अलाइव. करेक्ट. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. अरे अपने मार धार करने के बाद अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर आ जाएंगे और कहेंगे अरे भाई क्या हाल है तेरा, सब बढ़िया. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. मैं चाहता हूँ कि हर जगह भाईचारा हो, हर जगह एक इंसान दूसरे इंसान को समझे. दैट्स व्हाट Pablo Neruda is pleading for. And walk about with their brothers in the shade doing nothing. अपना जस्ट चिल करे. और भाई कैसा है तेरा दिन, कैसा गया? Just doing nothing. What I want, now this is very important line. It's just like a turning point of the poem. What I want should not be confused with total inactivity. मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सो जाओ, या चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि इट्स डेथ. चुप रहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानिए. So what I want should not be confused with total inactivity. I do not want you to be lazy, sleeping all day. Oh, sleeping means quiet. Oh, committing a crime और किसी को मार देना या सुसाइड कर लेना, बिल्कुल शांत हो जाना. No. I am saying here कि अपने हित के लिए चुप रहकर देखो एक बारी. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. जिस प्रकार की आप सोच रखेंगे उसी प्रकार की आपकी जिंदगी बनेगी. Life is what it is about. What you make it about, it is life. अच्छे से, बुरे तरीके से, गुस्से में, रोते हुए, हंसते हुए, that is all dependent on you. Right? I want no truck with death. मैं चाहता हूँ एक बारी के लिए रोज पर ट्रक तो चल रहे हों पर ट्रक से कोई किसी की मौत ना हो. Because most of the accidents happen with truck only on highways. We all know. And most of the deaths also have been on the highway only. तो इसलिए यहाँ पर पोएट बार बार कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. द पीपल हु एक्सप्लॉइट, जो लोग द ग्रीन वेल्थ ऑफ, जो लोग पेड़ काट देते हैं, जो लोग माइनिंग में से जो भी सामान होता है वो सारा एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं, जो फिशिंग करते हैं, जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने हित के लिए. घर बनाना है, पूरा जंगल जला दिया. कुछ हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी है तो सारे पेड़ काट दिए. जो लोग अपने हित के लिए, द पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग और फिशिंग इन द डीप सी, सोल्जर्स हु यूज वेपन, जो लोग कहते हैं कि यार दुश्मन को आज तो मार के ही दम लेंगे, who use weapons to kill fellow human beings, need some time to introspect कि कर क्या रहे हो तुम. Need some time to introspect into the consequences of their actions. Consequences means उसके result क्या होंगे. If I am killing someone today, मैं क्या कर रही हूँ, एक इंसान को मैंने मार दिया, उसकी पूरी फैमिली उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है और शायद ही उसकी फैमिली एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी even after 5 to 10 years of him being dead. So
पोएट यहाँ पे कह रहा है एक बारी सोच के तो देखो कि तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि अगर तुम सोचोगे, तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, शायद तुम वो काम ना करो। इफ यू जस्ट गिव इट अ थिंक, कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक बार ही सोचो ना, अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा तो शायद किसी की मौत हो सकती है, तो मैं तेज गाड़ी कभी नहीं चलाऊंगी। So one thought of that in your head, positivity needs to be there, right? He wants them to put on new clothes. New clothes here refers to एक नया अवतार, एक नया character, in terms of having more positivity, more piousness. Piousness is purity. He wants them to put on new clothes, that is to adopt a new approach, एक नया नजरिया जिंदगी को देखने का. Adopt a new approach towards life and to realize that killing so many people is not victory. किसी को मार देना जीत का प्रतीक नहीं होता है. अगर एक जंग आपने जीत ली और आपने करोड़ों लोगों को मार दिया उस जंग में, तो उस जंग की जीत किस काम की? He wants all of us to be united as one, as a team. Consider our enemy to be our brother. अरे यार तू मेरा भाई है यार. You know, love doesn't cost even a penny. सबसे आसान है जिंदगी में प्यार देना, पता है? It is one of the most easiest way to make someone feel better about themselves. किसी को प्यार से बात कर लो, अरे हेलो हाय कैसे हो आप, बहुत ठीक. उसको पूरे दिन वो चीज याद रहती है कि ओ इस इंसान ने मेरे से इतने प्यार से बात करी. और किसी को तुम बुरा भला बोल दो, हो सकता है अगर इंसान इमोशनली वीक हो तो वहीं पर ही रो जाए. तो आपके शब्दों में पावर है, आपके कर्म में पावर है. Your actions have power, your words have power. Make sure they are positive. ठीक है? He is promoting brotherhood, भाईचारा प्रमोट कर रहे हैं. Peace, एकता, सुकून, और and unity, again एकता. Peace is शांति का प्रतीक. He does not want us to stop our work but to take some time and analyze the result of our deeds. वो ये नहीं कह रहे कि जो भी जिंदगी में काम कर रहे हो अरे उसको खत्म कर दो, बंद कर दो काम, सिर्फ चुप रहो. नहीं, वो कह रहे हो उस काम में से कुछ समय निकाल कर चुप रहकर देखो. और जब उस काम में से समय निकाल कर चुप रहकर आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ और क्या मेरे कुछ करने से किसी को बुरा फील हो रहा है. क्या मेरे किसी को गाली देने से या क्या मेरे किसी को मारने से मैं उसको बुरा फील करा रहा हूँ, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए. करेक्ट? If we were not so single-minded, अगर हम दुनिया में सेल्फिश ना होते तो दुनिया ही अलग होती. If we were not, अगर हम सब, single-minded here refers to selfish. अगर हम, क्योंकि क्या होता है, this is the harsh reality, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, मुझे अरे मेरा फायदा हो रहा है ना, मेरा काम बनता, बाकी आई डोंट नो, बाकी लोगों का आई डोंट केयर. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है, बाकी यूक्रेन में क्या हो रहा है, कौन से स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, जिंदा है मर गए, मुझे क्या लेना देना है ना. No, there are things as sentiments, emotions, humanity, which should always be alive in your hearts and in your heads. और आपसे जो भी बन पाए आपको करना चाहिए.
if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once, एक बार के लिए, could perhaps a huge silence might interrupt this sadness. एक बारी के लिए चुप रहकर देखिए कि मैं अगर दूसरों के लिए सोचूं, अगर मैं आज जाता हूँ और दूसरों को पानी की बोतल देकर आता हूँ, खुशी मिलेगी. You will love when you give someone a water bottle, a banana or an apple. और जो खुशी होगी ना उस इंसान के चेहरे पे, that is going to be out of the world. आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना satisfaction मिलेगा कि wow, I did something great in my life today. I made someone happy. और वो आपको कब रियलाइज होगा? जब आप शांति से सोचें कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो दूसरों को खुशी दे, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो दूसरों को satisfaction प्रोवाइड करे. So for once could perhaps a huge silence might interrupt, बीच में interrupt करना मतलब बीच में बोल देना, interrupt the sadness. What sadness? Of never understanding ourselves. कभी कभी हम इतना ज़्यादा अपने आप से नफरत करने लगते हैं कि खुद को ही थ्रेटन करते हैं. थ्रेटन मतलब धमकी देते हैं खुद को ही. अरे मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं अपनी नस काट दूंगा. अरे मैं अगर 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ले पाया तो मैं गले आई एम गोइंग टू सुसाइड. हम लोग इतने ज़्यादा ड्रिवन हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. एंड दिस होल पोएम इज अबाउट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आप कौन से ट्रैक पर हैं. एक बारी देखिए अपनी जिंदगी को, थोड़ा सा कपड़ा लगाकर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड दिस इज a very saddening part which Pablo Neruda is stating, and this is the harsh reality of today's life. You know, the DPS boy who committed suicide recently, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको डिमीन कर दिया, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको बोल बोल के नीचा दिखाया कि एट द एंड ऑफ द डे उसके पास क्या ऑप्शन बचा? अरे यार मैं मर ही जाता हूँ. क्या पॉइंट है, क्या पर्पस है मेरा लाइफ जीने का? लेट्स जस्ट, अपने आप को ही धमकी दी. क्या किया? अपने आप को ही धमकी दिया, अरे यार लेट्स जस्ट किल माई सेल्फ. वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. Now you understand that how important your statements are to people, how important your actions are to people. We don't realize that. हमने बोल दिया, गाली दे दी, आगे बढ़े ना, सोचते ही नहीं है. We don't give it a second thought कि क्या मेरी बात उसको बुरी लग सकती है. एंड पीपल, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ इस वीडियो के थ्रू, दैट पीपल आर गोइंग थ्रू थेरेपीज, पीपल आर गोइंग थ्रू टेकिंग स्लीपिंग पिल्स. सो कोशिश करिए दूसरों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें. कोशिश करिए दूसरों को, अगर प्यार नहीं दे सकते तो दुख मत दीजिए. राइट? ट्राई टू स्प्रेड लव एज मच एज पॉसिबल. करेक्ट? ओके. So one last time I'm reading, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अपने आप को धमकी देती हैं तो ये मत करिए. Let me just read the explanation for all of you. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. बिना कुछ सोचे समझे बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं. आज ये टास्क कंप्लीट करना है, आज ये टास्क कंप्लीट करना है, आज ये टास्क कंप्लीट करना है. They are so driven. Driven मतलब कि इतना उनको सक्सेस दिखता है. They are so driven by the target of survival and the threat of life. यहाँ पे आयरनी है. एक जगह तो पोएट कह रहा है कि इतना ड्रिवन है अपनी लाइफ में, मैं घर खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा. और एक तरफ अगर वो काम नहीं कर पाते तो अपने आप को ही थ्रेट करते हैं, थ्रेट देते हैं. अरे यार मुझे तो 90 लाने थे, मैं 90 मार्क्स नहीं लेकर आ पाया. मैंने सबको बहुत ज़्यादा निराश किया, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को. आई एम कटिंग माई नर्व्स.
अरे अभी तो तुम बोल रहे थे कि 90 लेकर आऊंगा और अभी यू आर थ्रेटनिंग योरसेल्व्स. सो दे आर सो ड्रिवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल, एंड द सैड पार्ट इज दे आल्सो थ्रेट their lives. So they are in a mad rush to accomplish all their works. You should never be in a mad rush. हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. बस ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया. पुट इन योर 110%. अपने एफर्ट्स पुट इन करो कि मैंने ये पोएम कर ली, ये चैप्टर कर लिया, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो रिजल्ट आए देखा जाएगा. The other day I was telling my dad that I have failed in my life. Like failing क्या होता है? Failing is when you are constantly trying. वहां तक नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, कल पहुंचेंगे. आज फेल हो गए एग्जाम में तो कोई बात नहीं, there is always a next day, there is always a new hope, right? So they are in a mad rush to accomplish all their works. He says that perhaps if they pause for a while, अपने प्ले बटन को दबा के पॉज करें अगर आप जिंदगी के प्ले बटन को, तो you can appreciate your achievements and your lives will be much more happier than it was earlier. आपकी जिंदगी और ज़्यादा खुश किस्मत होगी, आपकी जिंदगी और ज़्यादा खुशनुमा होगी, खुशनुमा, right? He suggests that by keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. चुप रहकर हमें अपनी जिंदगी का ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पता लगेगा कि हम कौन से ट्रैक पर हैं. We'll be able to analyze ourselves more beautifully, more clearly. Correct? I hope अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है. The concept of the poem, the concept of the content is landing right in your head. It is not flying off your head. I just believe that. Correct? Perhaps the earth. Now the symbol of the earth here is एक holistic approach. Holistic का मतलब होता है overall, पूरी, comprehensive. Perhaps the earth can teach us, धरती हमें ये सिखा सकती है कि जब सब मर जाते हैं उसके बाद एक पुनर्जन्म होता है. इट्स अ कर्मा साइकिल. कोई जिस इंसान का जीवन में आना निश्चित है, उस इंसान का जीवन से जाना भी निश्चित है. Perhaps the earth can teach us when everything seems to be dead, later proves to be alive. किसी के मरने के बाद the soul never dies. The soul changes the body. Again वो body alive हो जाती है. The other body. It just keeps on changing. ये कर्मा साइकिल है. अगर आपने आज बुरा किया किसी के साथ तो आगे चलकर आपकी लाइफ में आपके साथ बुरा हो सकता है. अगर आपने आज अच्छा किया है तो आगे जाकर आपकी लाइफ में आपके साथ अच्छा होगा. So it is it's a karma cycle. Now, पोएट यहाँ पर कह रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, क्योंकि मैंने तो सारा अपना प्रवचन दे दिया. मैंने जो आप लोगों को सिखाना था, जो आप लोगों को लर्निंग देनी थी, जो आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग क्वाइट बताना था, और जो मैं चाहता हूँ इस पूरी दुनिया से, वो मैंने बता दिया. अब आप सोचो, जो मैंने बताया, क्या उस सेम स्टेटमेंट को आपको अपने जीवन में उतारना है या नहीं? नाउ आई विल काउंट अप टू 12. पहले मैंने आपको बोला था कि हम सब 12 तक गिन रहे हैं. अब सिर्फ और सिर्फ आप 12 तक गिनेंगे. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. I mean, मैं काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. मैं 12 तक गिनूंगा, आप चुप रहना, चुप रहकर देखना अपनी जिंदगी के बारे में, और मैं चला जाऊंगा. क्योंकि मेरा काम क्या था, पैब्लो नेरुदा का काम क्या था? आपको एक ऐसी दुनिया से मिलाना जहां पर चुप रहने से चीजें ठीक हो जाती हैं, जहां पर चुप रहने से आपको सही और गलत में
भेदभाव या गलत में बाइफिकेशन सेपरेशन करना आता है. I think this was a wonderful poem, and if you read it with utmost concentration, अगर आप बहुत ध्यान से मनन करके इस पोएम को पढ़ेंगे, you will enjoy every bit of the poem if you are willing. See, English subject में I believe one of the most constant things which are there, one is willingness. इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. मन में ये होना कि यार दिस सब्जेक्ट इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. सब में आता है, 11th में, 12th में, मेरी ग्रेजुएशन में, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरी PhD में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा. So this is one such thing which is going to continue throughout my life. So this is an important subject. One is willingness and second is उस willingness के ऊपर काम करना, your efforts. How much are you putting in or how much are you investing every single day? आप कितना समय इसके अंदर invest कर रहे हैं. And third is the technique. किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ आप रट्टा मार रहे हैं, क्या सिर्फ आप समरीज पढ़ रहे हैं, या आप एक इन डेप्थ नॉलेज लेकर हर शब्द को समझ रहे हैं. मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक यही विनती है सब लोगों से, अपने एयरपॉड्स लगाइए, आराम से आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए, बिकॉज आई थिंक माई वॉइस विल डू अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू. लाइक आप आराम से सुन सकते हैं, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं. आराम से सुनिए एंड द नेक्स्ट डे आप जब 2-3 बार इसी सेम रिकॉर्डिंग को, इसी सेम वीडियो को सुन चुके हैं, फिर उसके बाद आप अगले दिन नोट्स बनाइए. I think this is the one of the most easiest way to understand English. English को समझने का सबसे आसान तरीका है, ear plugs लगाइए, explanation सुनिए, समझिए और अगले दिन जाकर उसे अपने शब्दों में लिखिए, नोट डाउन करिए अपने शब्दों में. In this way, you will never forget the lines, you will never forget the understanding of the words. अब पोएम में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्सोटिक मोमेंट का मीनिंग ज़रूर आएगा. एक्सोटिक मोमेंट रेफर्स टू अ रेयर मोमेंट और अ स्ट्रेंज मोमेंट. दिस विल डेफिनेटली कम. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. Victory with no survivors means that there will be winning, but there will not be anyone to celebrate that win. These are few questions which will definitely come in your exams. और जो पिछली बारी आए भी हैं. Correct? So perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Karma cycle. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Correct? Now the explanation of this is as the earth undergoes changes. क्या होता है? Karma cycle. In winter everything freezes, becomes lifeless, but after some time the season changes again and everything comes back to life. कोई मरता है तो मरने के बाद उसका जीवन में आना निश्चित है. यहाँ पर इट इज रेफर टू एज बदलाव प्रकृति का नियम है. इन इंग्लिश वी कॉल इट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर आके ही खत्म होता है. जैसे एक सर्कल होता है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट वॉट इज द कॉन्स्टेंट फैक्टर? दैट इट कम्स एग्जैक्टली टू द पॉइंट इट स्टार्टेड विद. जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर ही आकर खत्म होता है. करेक्ट? सिमिलरली टेकिंग अ पॉज, ठहराव, एंड इंट्रोस्पेक्टिंग, अपने आप को जानना, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, रीजनिंग, इंट्रोस्पेक्टिंग इनटू आवर लाइव्स will give it a new meaning. How can I make my life more positive? How can I make my life more productive? मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे बना सकता हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर करता है. We will
be able to understand the purpose of our life. क्यों जी रहे हैं? It will be like a rebirth of the soul. अगर हम साइलेंस यूज करें अपनी जिंदगी में टाइम टू टाइम, तो हमारे लिए ये लाइफ इज गोइंग टू बी अ रीबर्थ. नया तरीका हमें मिलेगा जीने का. राइट? The poet has conveyed to all the people the purpose of his message. पोएट ने सारे लोगों को एक मैसेज पहुंचाया है. एंड व्हाट इज दैट मैसेज? वेयर ही आस्क्ड देम वंस अगेन टू टेक पॉज. सबको बोल रहा है एक बारी के लिए. मेरी आप लोगों से सबसे विनती है कि एक बारी के लिए चुप रहकर देखिए. एक बारी के लिए काउंट टिल 12 एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन. लास्ट में क्या करता है पोएट? मैंने अपना भाषण दे दिया, मैंने जो बोलना था, अब मैं 12 तक गिन रहा हूँ एंड ओके टाटा बाय, एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन, कीपिंग द सीन ओपन. इट इज एन ओपन एंडेड पोएम. लाइक यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन स्टेट नहीं किया है. कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम. जिंदगी में आगे भी आने वाला जितना भी समय है उसमें people should be able to understand, people should be able to experience more silence, ताकि आने वाले समय में भी वो समझे the importance of life. Right? I think that is it. 1 2 3 4 questions are there, very important. मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ. You can read the questions, you can write the answers. पर उससे पहले I want you to make every question very much crystal clear with the concepts. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? हमें 12 तक गिनना और एक जगह पर रहना क्या अचीव करा सकता है? It can make us achieve self-introspection. It can make us achieve mutual understanding. Self-introspection, mutual understanding and brotherhood. ये 3 चीज़ें हमें अचीव करने में सहायता कर सकता है. आत्ममंथन, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ रहना. And it will help us understand the importance of being silent. चुप रहने की वैल्यू, टाइम की वैल्यू बताएगा. So counting up to 12 will tell us the importance of time or the value of time, and keeping still will tell us the importance of us being without any movement, without any violence. So keeping still means no violence, and counting up to 12 means the importance, the value of time. Counting up to 12 is value of time, and keeping still is there should be no violence. समझ में आया question? Yes or no? Yes? Very good. Do you think, क्या आप सोचते हैं, do you think the poet advocates total inactivity and death? क्या आप सोचते हैं पोएट कहता है कि आराम से सोइए पूरा दिन, लेथार्जिक रहिए पूरा दिन, कोई काम मत करिए, या बिल्कुल सुकून में आप मर जाइए? क्या आपको लगता है पोएट ऐसा बोलता है? नो. No, the poet does not advocate total inactivity and death. He focuses on the value of being silent and of knowing your own self better. He focuses on self-introspection, Atma-manthan. He does not focuses on laziness or death. ठीक है? नो के बाद आप रीजनिंग जरूर देंगे क्वेश्चन में, that no, the poet does not advocate total inactivity. He advocates self-introspection and the value of time. ठीक है?
Okay, justify the title of the poem. The title of the poem is Keeping Quiet, and it is talking about the value of being silent. And because when we are quiet, when we are all by ourselves, we get to know where we are going wrong, we get to know what we are doing right in our lives. So the title of the poem Keeping Quiet is absolutely appropriate, as it tells the importance of being quiet. It tells the human beings of knowing themselves better and of doing better in their future, of not hurting people, right? किसी को भी लाइफ में नीचा नहीं दिखाना, किसी को भी लाइफ में बुरा नहीं बोलना, किसी भी एनिमल किंगडम में से यू शुड नॉट किल फिशेस, यू शुड नॉट किल एनिमल्स, कि अगर मेरी ज़िंदगी चल रही है तो मुझे दूसरों के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई डू नॉट केयर अबाउट anyone else. So yes, the title of the poem is appropriate because it tells the importance of being quiet, and by being quiet we understand our lives better. हमें अपनी लाइफ का और ज़्यादा क्लियर विजन मिलता है जब हम चुप रहते हैं, जब हम अपने बारे में खुद सोचते हैं, when we meditate, right? So yes would be the answer, and with the reasoning आपने इसको justify करना है. All the answer, even in the second question जब आप no लिखेंगे आप reasoning ज़रूर देंगे. थर्ड में justification reasoning के साथ होगी, and yes you will say it is an appropriate title. ठीक है. Then the fourth question is choose a quiet corner. अच्छा, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये मैं भी करूँगी. I will also do this. Choose a quiet corner and keep still physically and mentally for about 5 minutes. 5 मिनट के लिए आपको चुप रहना है, 5 मिनट के लिए कोई मूवमेंट नहीं करना है, मेंटली भी बिल्कुल शांत रहना है. Do you feel any change in your mind? Okay, because I meditate, so I can tell that when I meditate, there are 5 things which I feel. One is I feel at peace. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे शांत महसूस होता है, ऐसे सुकून सा महसूस होता है. I feel at peace. I feel satisfied. I feel positive. Optimistic feel होता है. And I also feel relaxed. ऐसा लगता है कि someone has taken all the tensions away from my head. जब आंखें बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे relaxed feel होता है 5 मिनट के बाद. So relaxation is there, being utmost positive is there, being more at peace is there, and more calm, CALM, more calm, and you feel more composed. कंपोज्ड मतलब एक ठहराव सा आ जाता है आपके बात करने के तरीके में, आपके काम करने के तरीके में. यू आर नॉट दैट अग्रेसिव पर्सन, अरे ये नहीं किया, क्यों नहीं किया. नो, यू आर नॉट दैट अग्रेसिव पर्सन. यू आर मोर ऑफ अ सटल रिलैक्स्ड पर्सन. आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइपर नहीं होते चीज़ों को लेकर. यू नो हाउ यू कैन टैकल दीज सिचुएशंस with positivity. You know how to tackle this situation with a lot of warmth. So my dad always says there are 2 ways to tackle any situation. या तो दूसरे का सिर फाड़ दो आप कि अरे ऐसा क्यों नहीं किया, या तो आप अपने सिर को कूल रख सकते हो. So things which are not in your control, do not stress about them. Things which are in your control, you can possibly think about them, not stressing about them. So when you are quiet for 5 minutes, this is your task.
इन दी कमेंट सेक्शन, जब आप लाइक भी करेंगे, शेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को मन से पसंद आता है कोई कंटेंट, तो वो आपके बिना बोले उसको शेयर करेगा, अरे भाई तू ये देख बहुत बढ़िया है। और जब आपके मन से कोई आपको कंटेंट पसंद नहीं आता, तो चाहे जितना मर्जी कोई भी लोग बोल दे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू विल नॉट डू इट। आपको लग रहा है कि मेरी वजह से इसका फायदा क्यों हो, राइट? पर आपके एक एक्शन की वजह से, वन एक्शन ऑफ योर्स, बाय जस्ट क्लिकिंग, लाइकिंग, by just sharing the content, can possibly influence someone, can give someone more impact, और वो उस इंसान को educate कर सकता है। when you share this video, you know what you are doing, you are sharing the content of the whole video, you are sharing the experience of mine to the other individual। दूसरे इंसान को आप educate कर रहे हो, क्या करके? छोटा सा काम, शेयरिंग द सेम वीडियो। और वो तभी करता है इंसान जब उसको दिल से लगे कि नहीं यार, दिस थिंग इज राइट फॉर मी, ये जो भी मैम बोल रही है ना, शायद मेरे अच्छे के लिए बोल रही हैं, सो आई थिंक आई शुड डू इट। सो लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग ओनली हैपन्स फ्रॉम द हार्ट, और जब आपको लगे दिल से कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, देन ओनली डू इट, अदरवाइज छोड़ो, ठीक है? So here I would just request all of you, like every one of you, whosoever is watching right now, that आप ये fourth question ज़रूर करेंगे। You will choose a quiet corner, keep yourself still physically and mentally for about 5 minutes, और उसके बाद जो भी changes आपको feel होते हैं आपकी body में, आपकी mind में, आपके behavior में, आपकी surroundings में, वो 5 शब्दों के अंदर अंदर आप comment section में लिखेंगे। I will definitely check all the comment sections, like all of your comments, पूरा comment section में जो भी लिखेंगे, everything I will check, ठीक है? So this is your promise from my end, and this is my promise from your end, कि हम साथ में we will try to be good listeners, we will try to be good speakers and good human beings on the top of everything, right? So thank you so much for investing your time in the right place, in the right person, and in the right content. Take care of yourselves, stay hydrated, and if you have any doubts, please write down in the comment section, or you can also mail on the mail ID bhavyahuja25@gmail.com. Okay, so you can mail your doubts, या तो नहीं तो आप comment section में लिख सकते हैं, ठीक है? Bye bye, take care of yourselves.